Hi friends, नमस्कार, वेलकम बैक टू डिवाइन टॉक्स विद नितिन, जहां पर हम ट्राई कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे टू टॉक एंड टू रीड स्पिरिचुअल बुक्स एंड मोटिवेशनल कंटेंट। सिर्फ पॉजिटिव बातें, बढ़िया बातें। उसी सीरीज में श्री दुर्गा स्तुति के अध्यायों की रीडिंग कंप्लीट कर कर हम अपलोड कर चुके हैं और पैरेलली सरचार्ज विद डिवाइन लव बुक की रीडिंग चल रही है। इसके भी हम 13 चैप्टर्स पहले अपलोड कर चुका हूं मैं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जाकर चेक कर सकते हैं। आज रीड करने जा रहे हैं जी चैप्टर नंबर 14। सो लेट अस स्टार्ट। जय गुरु जी। प्रोड्यूसिंग वाटर on a barren land. When in Chandigarh, Guruji would often go on a particular piece of a land with the wish of constructing a small temple there for his disciples. Somehow the plan changed, and Guruji asked my grandfather to buy that piece of land. My grandfather, being a true follower of Guruji, did not even question him and went ahead and did the deal. The previous owner, however, refused to give us the original papers in spite of us having bought the land. Upset over his behavior, my mother and I approached Guruji. तो गुरुजी ने इनके ग्रैंडफादर को कहा था सुखमनी आंटी के एक प्रॉपर्टी खरीदने को, जो कि इनके ग्रैंडफादर ने बिना एनी क्वेश्चंस और सेकंड थॉट, गुरुजी के ट्रू फॉलोअर्स थे वो, उनके आगे चैप्टर में बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस शेयर किए उन्होंने, तो वो तब बात करेंगे। तो इन्होंने वो प्रॉपर्टी खरीद ली और समहाउ पेमेंट वगैरह दे दी, बट जिसकी प्रॉपर्टी थी वो डॉक्यूमेंट्स देने में आनाकानी करने लगा। We were told to go to his house next day and request him again. As instructed, three of us went to his house and requested him to hand over the papers to us. He refused to give us the papers and spoke very rudely. In the afternoon, when we went to do our daily cleaning of the temple, Guruji called us into his room and asked, "Have you got the original papers from him?" तो गुरुजी ने इनको कहा कि अगले दिन तुम दोबारा जाओ, उससे रिक्वेस्ट करो कि भाई पेपर दे दे। तो नेक्स्ट डे जब ये लोग गए तीनों दोबारा, तो भी उसने बड़ी बदतमीजी से भी बात करी और कागज नहीं दिए। तो जब सुखमनी आंटी और मंदिर की सफाई कर रहे थे, तो इतने में गुरुजी आए और गुरुजी ने उनसे पूछा कि क्या तुम्हें ओरिजिनल पेपर्स मिल गए? नो गुरुजी, ही हैज पॉइंट ब्लैंक रिफ्यूज टू गिव अस द papers. At that moment, he kept quiet, and the day went on as usual. We stayed with Guruji till 6 a.m. and just as we got home, we got a call from Guruji to come back. Guruji again expressed the desire to be taken to military hospital in Chandigarh. Sukhmani, get me something to wear. तो कहते हैं जी सारा दिन काम वाम निपटा कर जब सुबह 6 बजे के करीब ये गए, तो इनको थोड़ी देर में ही गुरुजी का कॉल आ गया कि वापस आओ, मुझे लेकर चलो मिलिट्री हॉस्पिटल और कुछ पहनने के लिए लेते आओ। आई ओपनड हिज कबर्ड एंड टुक आउट अ न्यूली ड्राई क्लीन्ड ड्रेस. I cut the dry cleaner's tag and made Guruji wear it myself. At the hospital, he went to one of his disciples' office and sat down on the examination bed. He sent the doctor and a few others who were there on various errands, and only my mother and I were left. Suddenly, Guruji put his hand in his pocket and produced the original documents. Congratulations, Sukhi auntie. Here are your original documents. बताओ जी। तो गुरुजी जब मिलिट्री हॉस्पिटल गए, इनसे जब चोला नए कपड़े मंगवाए वो पहनकर, तो जैसे ही वहां सब इधर उधर थे और सिर्फ सुखमनी आंटी और उनके मम्मी सुखी आंटी थे, तो गुरुजी ने अपने चोलों में ड्रेस में हाथ डाला और ओरिजिनल प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस कर दिए। गुरुजी कैन डू एनीथिंग. Often we would be told to develop the farm and put up a tube-well and grow vegetables. गुरुजी इनको कहते भाई वहां पर फार्म हाउस टाइप बनाओ, वहां ट्यूबवेल लगाओ और सब्जियों का. We tried to dig for water, but in spite of going down very deep, we could not get even a trace of water. तो इन्होंने ट्राई भी किया, काफी गहराई तक बोरिंग करी, खुदाई करी, बट वहां कोई भी पानी का निशान नहीं मिला. The surrounding farm owners would come and tell us that we had been cheated and that this piece of land does not have any water. Guruji, on the other hand, would call up
and ask us to hurry up and grow vegetables. तो साथ वाले जो फार्म हाउस में थे जिनका, उन्होंने इनको कहा कि आप लोगों को तो चीट कर लिया गया है, इस फार्म हाउस में पानी है ही नहीं, वो दिक्कत है। बट गुरुजी कहते थे कि जल्दी करो जल्दी करो, जल्दी से vegetables ugaओ। Not understanding Guruji's will, we got a survey done on the land. The report came negative. The land was completely dry. We went to Delhi and Guruji asked us about the tube well. Have you put the tube well yet? तो कहते हैं जी इन्होंने वहां टेस्टिंग भी कराई उस प्रॉपर्टी की, बट वो प्रॉपर्टी के टेस्ट भी नेगेटिव आए। ये पता लगा कि इस धरती में जमीन में पानी ही नहीं है। तो जब ये दिल्ली गए, गुरुजी ने इनसे पूछा कि भाई ट्यूबवेल लगा लिया? गुरुजी, देयर इज नॉट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन द लैंड। तो इन्होंने कहा कि गुरुजी ने जब पूछा कि ट्यूबवेल लगाया, तो इन्होंने कहा कि गुरुजी वहां तो पानी की बूंद भी नहीं है उस फार्म में, तो उस लैंड में। गुरुजी स्माइल एंड सेड दैट इट इज नॉट पॉसिबल, ड्रिल अगेन एट द राइट हैंड साइड कॉर्नर ऑफ द प्लॉट। तो गुरुजी कहते हैं ऐसा हो नहीं सकता, राइट हैंड साइड ऑफ द प्लॉट को आप लोग दोबारा से ड्रिल करो। वी वेंट बैक एंड गॉट द लैंड ड्रिल्ड at the same spot where Guruji has instructed, and we did not have to go 2 days before we struck the water. तो जैसे ही कहते जी, जैसे हम गुरुजी ने गाइड किया था, हम गए, हमने राइट साइड ऑफ द लैंड पे ड्रिल और डिगिंग स्टार्ट करी, और थोड़ी ही देर में पानी आना स्टार्ट हो गया, वहां पानी मिल गया। द एरिया फ्रॉम वेयर द वाटर केम आउट हैड ब्लू कलर्ड पेबल्स which I have never seen anywhere before. The water was sweet. So Suki auntie, sitting here in Delhi, I have taken out water on your land. Water in that area had dried up since the past 100 years. For you, I have blessed that area with water. तो गुरुजी ने कहा, सुक्की आंटी, दिल्ली बैठे बैठे मैंने तुम्हारी धरती को, लैंड को ब्लेस कर दिया। वो जगह श्रापित थी, पिछले 100 साल से वो ड्राइड अप थी, वहां पानी नहीं था, बट तुम्हारे लिए मुझे उस जगह को ब्लेस करना पड़ा। He further added, distribute this water to everyone who requires it, but don't ever charge money for it. If you do, the water will dry up. तो गुरुजी ने कहा कि इस जल का, जो ये जल निकला है, इस पानी को सबको डिस्ट्रीब्यूट करना जिसको भी उसकी जरूरत हो, बट उसके पैसे मत लेना। अगर तुमने पैसे लिए तो वो दोबारा से ड्राई अप हो जाएगा। When the land was prepared for sowing, there was a pair of nags, snakes that was sighted. तो जब वहां पर उगाई बोई शुरू कर रहे थे, वहां पर पेड़ देखा गया था, सांप का जोड़ा। Unfortunately, the workers and villagers got together and killed them both. When news got to us, we were very upset and went to Guruji. तो जैसे ही इनको पता लगा कि जो वर्कर काम कर रहे थे और विलेजर्स थे, उन्होंने तो मार दिया उस जोड़े को सांप के, तो ये लोग बड़े अपसेट हुए और गुरुजी को इन्होंने कांटेक्ट किया। तो गुरुजी ने बहुत ही बोला कि वाई डिड यू किल देम, दे वर पेयर ऑफ इच्छाधारी नाग, सेड गुरुजी। तो गुरुजी ने कहा कि उन्हें मारा क्यों, वो इच्छाधारी नाग थे। We were extremely upset on hearing this and told Guruji that we were not at the site when the incident took place. Had we known, we would not have let this happen. Guruji then told us an upay, a remedy to rectify the wrong that was done. The day the upay was done, that same night, I saw 2 nags in my telepathy. They both came onto my bed and said thank you before they finally disappeared. तो गुरुजी ने इनको कुछ उपाय बताया था, कोई रेमेडी बताई थी, वो जब इन्होंने करी तो इनको सपने में वो 2 नाग दिखे और उन्होंने इनको स्माइल किया और वो चले गए। When next we met Guruji, he told us that both of them had finally liberated. तो गुरुजी से जब ये लोग मिले तो गुरुजी ने बताया कि वो नाग का जोड़ा फाइनली लिबरेट हो गया, मतलब मुक्ति पा चुका है। All of us are scared of snakes, so if not to kill them, what should one do? This question on my mind when one day we were asked to go to Bada Mandir to make some preparations for Guruji. Before he brought with him someone who wanted to see the temple. We had the light switch on, and as we went to switch on the pump for the waterfall, we saw snakes. As Guruji entered in the temple, he asked, why haven't you turned on the waterfall? Guruji, there are snakes sitting on the switch and we are scared. We replied, go now,
Switch it on. The snakes have gone. We again went and saw there were no snakes and turned up the pump on. ਜਦੋਂ ਵੀ सांप देखो तो हथ जोड़ के गुरु जी का नाम लो ते वो चले जाएंगे। तो सांप से सबको डर लगता ही है। तो जैसे ही एक बार बड़े मंदिर में किसी ने आना था तो फाउंटेन को ऑन करने जाना था, बट जब ये ऑन करने गए इन्होंने देखा वहां सांप थे, तो ये भागकर वापस आ गए, ऑन नहीं किया। तो गुरुजी ने पूछा कि अभी तक फाउंटेन ऑन क्यों नहीं है, तो आंटी ने बताया कि वहां पर सांप है। तो गुरुजी ने कहा अब जाओ, अब नहीं होगा। और गुरुजी ने बताया कि जब भी सांप दिखे, स्नेक्स दिखे, तो हाथ जोड़कर गुरुजी का नाम लो, वो चले जाएंगे। The Bada Mandir is so blessed that when the construction started, there were a lot of snakes on that land. I had heard there was a pillar of was a pair of Ichchadhari nags there as well. तो बड़े मंदिर की जो धरती है जी, जो जब लिया गया वो प्लॉट, तो वहाँ बहुत सारे स्नेक्स थे और वहाँ इच्छाधारी नाग का पेयर भी था। गुरुजी, आर देयर एनी इच्छाधारी स्नेक्स और इट्स जस्ट अ myth? तो इन्होंने पूछा गुरुजी ये सब वहम है, सच में इच्छाधारी नाग होते हैं? Yes, they do exist. There was a pair on the बड़ा मंदिर land, but now they have gone. तो गुरुजी ने कहा हाँ होते हैं, एक जोड़ा बड़े मंदिर की जमीन पर भी था, पर अब वो चले गए हैं। I was curious to know if the land had any significance. गुरुजी replied, ਇਹ ਸੱਚੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ बड़े महापुरुषों ने भक्ति की हुई है, ਇੱਥੇ ਦੀ वाइब्रेशंस बड़ी हाई हैं। तो ये कहा गया है जी बड़े मंदिर की धरती के लिए कि ये बड़ी पायस, प्योर, पवित्र धरती है। यहाँ कई संतों ने कई बार तपस्या की है, इसलिए वो जो पीस ऑफ लैंड है बड़ा पॉजिटिव है। दिस लैंड इज वेरी पायस। The surroundings areas used to become barren due to heat, but the temple grounds were always lush green. All plants could be grown all the year. The shivling, although hollow, supports a heavy chandelier. Thanks to Guruji's blessings, many of us have witnessed Amrit flowing from the shivling, and according to Guruji, one day there will be milk flowing on the shivling instead of Amrit. तो बड़े मंदिर में अगर आप लोगों ने देखा है तो ऊपर शिवलिंग बना हुआ है बहुत बड़ा, वो अंदर से हॉलो है, खाली है, बट शैंडलर बहुत बड़ा है, वो उस पर टिका हुआ है और उससे कई बार कई संगत ने अमृत वर्षा देखी है, मतलब कि शहद टपकते हुए देखा है। और गुरुजी ने कहा है कि एक दिन आएगा उस शिवलिंग से दूध बहेगा। The Ganesha idol at the entrance too has its own powers. The day the idol reached Delhi, it was Lodi, a function celebrated in January. My mother and I, along with Guruji's mother and another lady, were instructed to go and leave idol at Bade Mandir. Just as we kept the idol and it does us, the idol opened its eyes as if it were real. तो कहते हैं जी गणेश जी की भी वहाँ बड़े मंदिर में एक गणेश जी का भी स्वरूप है, मूर्ति है, तो उस मूर्ति के भी अपनी पावर्स हैं। जब उसको स्थापित किया गया था तो जैसे ही स्थापित करके इन लोगों ने हाथ जोड़े तो गणेश जी की मूर्ति की आंखें खुल गई थी, जैसे कि वो जीवित हो गए हों। All of us who were present there saw small green eyes that moved. We were all taken aback by what we saw. How could a stone idol open its eyes? We were all very shaken by the incident, and when we went back to Guruji, the first thing he said to us as we entered was, "So then did Ganesh ji open his eyes for all of you to see small green eyes?" तो ये कह रहे जी जैसे हमने देखा कि गणेश जी स्थापित किए तो गणेश जी की आंखें खुल गई थी और हरे रंग की छोटी छोटी आंखें थी। तो ये सब अमेज थे कि यार ये सच में हुआ है कैसे। जब ये लोग बड़े मंदिर पहुंचे, गुरुजी के पास वापस पहुंचे, तो गुरुजी ने बिना कुछ बताए पूछे जाने इनको बता दिया कि क्या आज गणेश जी की आंखें देखी छोटी हरी। ये देखो जी, आप भी गणेश जी की मूर्ति के दर्शन कीजिए। जय गणेश जी की। The Guru Nanak Dev Ji's photograph in the Bada Mandir, we were told, is one of that resembles him the most. All photographs of gods, goddesses are imaginations of the painters, do not resemble the true gods, as I have mentioned before. तो गुरु नानक देव जी की भी एक स्वरूप है, एक वहां पर फोटो है बड़े मंदिर में ही, शिव जी के स्वरूप मूर्ति के बिल्कुल पीछे। तो गुरुजी ने बताया है कि वो जो रूप है उसमें स्वरूप है गुरु नानक जी का, वो है जो मोस्ट रिजेंबल करता है
गुरु नानक देव जी को, अदरवाइज जितने भी गुरुओं की कह लीजिए या भगवानों की कह लीजिए, वो पेंटर्स की इमेजिनेशन है, जैसा कि आपको पहले चैप्टर में भी एक में रीडिंग में बताया था, जब 10 गुरुओं के दर्शन करवाए थे गुरुजी ने सुक्की और सुखमनी आंटी जी को। द ब्रास आइडल ऑफ शिव जी इज जी टू टर्न्स इट्स हेड sometimes to left and sometimes to right. Many such things are taking place and yet to place at Bada Mandir. We were predicted by Guruji much before. तो गुरुजी ने पहले ही बताया हुआ है कि यहाँ पे कई चमत्कार होंगे और कई चमत्कार हो चुके हैं। जैसे वहां पर ब्रास की शिव जी का स्वरूप है, शिव जी की मूर्ति है, वो कभी कई लोगों ने देखी है लेफ्ट साइड मूव करते हुए, कभी राइट साइड मूव करते हुए। गुरुजी ने कहा है ए मंदिर सच दी थां है, मैं अपनी बहुत पावर्स इस मंदिर ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਮੰदिर ਵਿੱਚ आओगे ਤੁਹਾਡੇ बुरे कर्म सुधरनगे। तो गुरुजी ने कहा है कि ये जो मंदिर है, बड़ा मंदिर दिल्ली छतरपुर में जो है, वो गुरुजी ने बताया है कि एक ब्लेस्ड जगह है, सच की जगह है, और गुरुजी ने अपनी बहुत सी पावर्स वहां डाली हैं, इसलिए वहां बहुत से चमत्कार दिखे हैं कई संगत को, और अभी भी दिख रहे हैं और आगे भी होंगे। तो ये था जी आज के चैप्टर की रीडिंग। होप आपको सुनने में आनंद आया होगा, ब्लेसिंग्स फील हुई होंगी। रीडिंग में कोई गलती रही हो तो प्लीज माफ करें, और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड फैमिली में भी कहें टू सब्सक्राइब द चैनल, और कमेंट्स में जय गुरु जी, हर हर महादेव जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।